जो आज हमारा क्लास है, द टॉपिक इज रिस्क मैनेजमेंट, यू ऑलरेडी नो दैट। और इन सब के सिलेबस मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं, इन सब के सिलेबस मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं। रिस्क मैनेजमेंट थ्योरी एंड एप्लीकेशन, these are different types of risk assessment, baseline, continuous and issue based risk assessment, हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। हजार्ड आइडेंटिफिकेशन रिस्क असेसमेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे हम लोग। वर्क प्लेस रिस्क असेसमेंट एंड कंट्रोल पढ़ेंगे। ज्वाइंट सेफ्टी एनालिसिस पढ़ेंगे। रिस्क मैट्रिक्स पढ़ेंगे। रिस्क मैनेजमेंट ऑप्शंस, इन्हीं सारी चीजों में कवर है। उसके बाद जितने सारे टॉपिक है, टार्प कुछ चीजें बच जाएंगी, एक दो टॉपिक, तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, क्योंकि सबसे मेजर टॉपिक यही है जनरल सेफ्टी का। तो जो भी बचेगा हम लोग आगे कर लेंगे, राइट। इस लेक्चर्स के ऑब्जेक्टिव्स, क्योंकि ऐसा मुझे कल लग रहा था कि आपको कंफ्यूजन ना हो जाए, या फिर इस क्लास में भी ये कंफ्यूजन ना हो आपको कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। So these are the contents which we shall study in today's lecture. So this is the summary of today's lecture. Important circulars, basic definition, what is risk management, what are different tools and other things, what is hazard management, risk assessment, risk score, risk rate, ranking, risk calculator, job safety analysis, and personal risk assessment. Okay, so these are the objectives of today's class which we are going to study in today's class, right? कुछ चीजें ऐसी है जो मैंने एक जो स्पेशल क्लास लिया था उसमें कुछ चीजें मैंने ऑलरेडी बताया था, तो हो सकता है कि कोई थोड़ी सी चीजें रिपीटेड हो, बट कोई नहीं, वो अच्छा है, आपके लिए रिवीजन हो जाएगा, राइट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट सर्कुलर्स व्हिच वी शैल डिस्कस। और इससे डायरेक्टली क्वेश्चंस DGMS पूछती है सर्कुलर नंबर दे करके, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप एक बार इन सारे सर्कुलर्स का PDF मैंने ऑलरेडी ग्रुप में भेज दिया है, आप जस्ट वंस गो थ्रू करें इन सारे सर्कुलर्स का, राइट। बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, हम तो ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में सारे पॉइंट्स देखने वाले हैं, राइट। सो वी शैल स्टार्ट विद द बेसिक डेफिनेशन, एंड द फर्स्ट basic definition is regarding hazard. Okay, regarding hazard. So again, before that, I want to show you one small picture which you have seen 2-3 times. So this is the small picture. Previous slide, okay. I'll show all the things. Don't worry. मैं सारी चीजें दिखाऊंगा. Okay, so this is the basic picture for the basic definition. The difference between hazard and risk. What is hazard? Hazard, that is something that can potentially cause harm. वैसी कोई चीज जो आपको potentially harm cause कर सकता है, उसको hazard बोलते हैं। लेकिन जब कोई आदमी प्रेजेंट होता है उस hazard के पास, तो फिर वो कहा जाता है risk, right? So this is the basic difference between hazard and risk. For example, this dolphin or shark is present in the water, so that is a source of hazard. But when you swim beside the dolphin or shark, then you are at risk. Okay, so this is the basic difference between hazard and risk. Okay, now हम वापस आते हैं और hazard के बारे में देखते हैं। तो hazard, I told you that source of potential harm or injury or loss is called hazard. The source of potential harm, injury or loss is called hazard. And then what is risk? The combination of likelihood of specific unwarranted event and the potential consequence. मैंने आपको पहले ही बताया वहां पे, I already told you that if you are swimming beside the shark, then you are at risk. So what is this? The combination of likelihood of specific unwanted event जो आप नहीं चाहते कि हो, and the potential consequence जो हो सकता है उसके बाद. Okay, so basically risk is a function of severity and probability. Severity मतलब unwanted event होगा, और probability वो हो सकता है या नहीं हो सकता है, ठीक है। तो this is risk. A hazard is something that has a potential to cause harm. There's a basic difference between risk and hazard. The hazard is something that has potential to cause harm, while risk is the likelihood of harm taking place. Okay, तो ये आपको डायग्राम इसलिए मैंने बताया था, इस डायग्राम को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो you shall understand what is the difference between hazard and risk. Is risk is always defined for men or it is for machineries? Is risk okay? किसी महेश जी has asked that risk सिर्फ लोगों के लिए होता है या फिर मशीनरीज के लिए होता है? ऑफ कोर्स मशीनरीज के लिए भी होगा। मशीनरीज आपका अगर मान लो खराब हो गया, मशीनरीज कोई डम फेलियर हुआ और मशीनरी उसके अंदर अगर मान लो आपका बरी हो गया, या मशीनरी के अंदर आग लग गई, तो ऑफ कोर्स दैट इज आल्सो रिस्क फॉर मशीनरी. सो मशीन the hazard or risk we are talking about
not only about persons which are available, of course, all the assets which are available in the mines. Okay, so hazard and risk are for all those assets. Again, these are the some more basic definition. What is risk control? So risk control, देखो मैंने पहले आपको बताया था, already told you कि आपको ना पूरा definition बाद में पढ़ना, पहले आप word को ध्यान से पढ़ना. रिस्क कंट्रोल. ओके, सो इसका मतलब ये है कि जो भी रिस्क अवेलेबल है उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि उस रिस्क को आप कंट्रोल में रखें और उसका कोई अनवांटेड कंसिक्वेंस ना हो. सो दैट इज रिस्क कंट्रोल, राइट? सो व्हाट इज रिस्क कंट्रोल? Implementation of strategies to prevent or control hazard. That is simple risk control. What is risk rating? देखो, there are different types of risk available. So अलग अलग रिस्क का कितना ज्यादा चांसेस है अनवांटेड इवेंट करने का, उसको आपको कैटेगराइज करना है. कोई रिस्क बहुत ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, कोई रिस्क कम हार्मफुल हो सकता है, या फिर किसी रिस्क का होने का चांसेस बहुत ज्यादा है, दूसरे के होने का चांसेस बहुत कम है. तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रिस्क को रेट करते हैं डिफरेंट स्केल पे. व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? अगेन फिर से वही कि जो आपके पास रिस्क अवेलेबल है, यू हैव टू मैनेज दैट रिस्क. ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेप्स टेकन टू मैनेज रिस्क by identifying hazards and implementing controls in the workplaces, right? So these are very easy definition, not very difficult definition. You already know the meaning of management, you already know the meaning of risk. So what is risk management? To manage the risk. And what is management? You already know. What is risk assessment? Assessment मैंने आपको I have already told you that assessment means you just want to assess, you just want to means make yourself sure. Yes, connection is good today. Okay, so risk assessment is like you want to assess the risk, you want to know what kind of risks are present, you want to increase your knowledge regarding the risk assessment, regarding the risk. That is why it is called risk assessment. Please keep your doubt right on the note paper, and I shall clear those doubt after the class. Otherwise I will be like interrupted again and again. So it is a request, you write down your doubts on your paper and then ask me in the last of the class. Okay, otherwise a lot of time will be wasted, which I don't want, right? So these are the basic definition of risk control, risk rating, risk management, and risk assessment. All right, so this is the first question which have been asked by DGMS. Read the question and then answer. A risk is the ability of a substance, person, activity, or process to cause harm, the likelihood of a substance, person, activity, or process to cause harm, the potential of a substance, person, activity, or process to cause harm. Okay, so these are the options. Write the answer. Well done that most of you people are answering B. Mahesh has answered E. Okay, so excellent thing. The risk is the likelihood. Risk is the likelihood of causing harm. So answer is B. किसी ने आंसर किया था E, none of these. अब none of these आंसर आपने क्यों किया? None of these जिसने भी आंसर किया वो क्यों किया? मैंने यहाँ लिख रखा है. This is the combination of likelihood. अब जब combination of likelihood लिख दिया, so why you have answered E? Of course, there is no point in answering E. Right? This is the question number 2. Risk is the function of, these are the options: severity, accessibility, severity, probability, severity, hazard, harm probability, and none of the options. Okay. So again, write the answer. Risk is the function of, most of you people are answering B, and of course that is the correct answer. So B is the correct answer. Already in the previous slide I have written this, that risk is a function of severity and probability. Well done, very good. Okay, so moving ahead regarding the risk management, it was 9th conference on safety in mines which has recommended adopting risk management as a tool for what? For development of appropriate health and safety management system in Indian mines. Okay, so ये 9th conference on safety in mines था जिसने ये बताया कि रिस्क मैनेजमेंट को हर माइंस में अडॉप्ट करना चाहिए फॉर इंक्रीज्ड सेफ्टी एंड हेल्थ स्टैंडर्ड्स. It was further suggested that risk assessment exercise
should follow an appropriate process. Okay, एक standard process होना चाहिए. There should be one standard process which every mines should follow, such that risk management is uniform all across the mines, all across the country. Okay. All right. So these are the steps in risk management process. What are different steps? अब मैनेजमेंट देखो, मैनेजमेंट आप जानते हो, मैनेजमेंट इज द कंप्लीट प्रोसेस. मैनेजमेंट इज द कंप्लीट प्रोसेस. आप जानते हो मैनेजमेंट के अंदर सुपरविजन, कंट्रोल, organizing, controlling, everything is included in management. So what is risk management process? Identify the risk, assess the risk, then control the risk, and then review controls. So these are the 4 steps involved in the risk management process that you have to identify. Because अगर आपको रिस्क के बारे में पता ही नहीं है तो आप मैनेज कैसे करोगे? सबसे पहला काम तो ये है कि आप रिस्क को आइडेंटिफाई करो. ठीक है, एक बार आपने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, फिर मैंने आपको बताया कि कुछ रिस्क ऐसे हैं जो हो सकते हैं ज्यादा बार, और कुछ रिस्क ऐसे हैं जो कम बार हो सकते हैं. इसलिए यू हैव टू एसेस द रिस्क, देन यू हैव टू कंट्रोल द रिस्क, कि वो रिस्क जो है have to review the control, कि जो control माइंस में exist करता है, is that effective or not effective. Okay, so these are the 4 basic process of risk management process. I have written that again. So this is the similar slide. फोटो मैं ज्यादा इसलिए लिख देता हूं ताकि आपको याद करने में आसानी हो. It is easy to memorize through photos than through text. That is all these images. Okay, this is the question which have been asked in the exam. Which national conference on safety in mines recommended adopting risk management as a tool for development of appropriate health and safety management systems in Indian mines? Okay, so these are the options. Read the question and then answer it. Excellent that most of you people are answering C, and that is of course the correct answer because I have already told in the previous slide. Okay, well done. Very good, very good. Moving ahead. This is the 4th question. In an open cast mines, the following is oblique are steps of risk management. So now question number 4, read the question and then answer. Okay, and I want everyone watching this class to answer. There are 56 people, so I want at least 50 answer for every question. ये मैटर नहीं करता है कि आप सही जवाब दे रहे हो, आप गलत जवाब दे रहे हो, बट ये जरूर मैटर करता है कि आप जवाब दे रहे हो कि नहीं दे रहे हो. ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि आप सब लोग इसका जवाब लिखिए, चाहे गलत सही जो मन करे लिखिए. सही जवाब तो भी हम देखेंगे ही, लेकिन एटलीस्ट ये मैं जरूर चाहता हूं कि आप सब लोग इसका जवाब दीजिए. ठीक है, ऑल दोस्त यू हैव टू राइट द आंसर. फर्क नहीं पड़ता कि आप सही दे रहे हो गलत दे रहे हो, एग्जाम में फर्क पड़ेगा, अभी कोई फर्क नहीं पड़ता. ऑलराइट, सो आंसर इज ई. ऑफ कोर्स, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रिस्क मैनेजमेंट? मैंने आपको बताया रिस्क मैनेजमेंट इज द कंप्लीट प्रोसेस. Measure the risk, implement the control, develop the control, and identify the hazard. So answer is combination of all, that is E. Right? So again, it was very easy question, and excellent that you all people answered it correctly. Then it is the next question. Read it and answer. Risk management is defined as, these are the options. Okay, so read the question and answer it. Mujahid Pasa has answered A. Okay. Some people have answered D, A, B, and C. Subham has answered D, Aditya has answered D. Answer is A. देखिए, आप ना बी ऑप्शन को पढ़िए. बी ऑप्शन क्या लिखा हुआ थी? प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मॉनिटरिंग एंड मैनेजिंग पोटेंशियल रिस्क इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज इम्पैक्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन.
पूरा लाइन सही से नहीं लिखा हुआ है, जैसे भी लिखा हुआ है डीजीएमएस ने डायरेक्टली लिखा है तो हमें भी डायरेक्टली लिखना है, बट कभी भी मैक्सिमाइज नहीं करना है। यहाँ पे होना चाहिए मैक्सिमाइज नेगेटिव इंपैक्ट, बट एनीवेज मैक्सिमाइज इंपैक्ट भी वही है, तो हमें मैक्सिमाइज थोड़ी करना है इंपैक्ट को, हमें तो मिनिमाइज करना है ना। इसका मतलब बी का आंसर हो नहीं सकता, जब बी आंसर हो नहीं सकता तो ये भी आंसर नहीं हो सकता, तो इसका मतलब कि अकेला कोई आंसर होना चाहिए। तो अब आप पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ए इज द करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने भी देखो, जिन्होंने भी आंसर ए के अलावा और कुछ किया है, आई कैन सिंपली कंक्लूड दैट यू हैव नॉट रेड द क्वेश्चन केयरफुली। सो इट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड द क्वेश्चंस केयरफुली। आपको क्वेश्चन पढ़ने में हो सके 1 मिनट लग जाए, जवाब देने में तो 1 सेकंड लगेगा ना। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचना है कि पूरा क्वेश्चन पढ़े बगैर आप जवाब दे दीजिए। ऑलराइट, सो आंसर इज ए, आंसर इज ए। Okay, so again, continuing on the risk management only, typical risk management forms. These content have been fetched from DGMS circulars, DGMS material, जो भी उनके वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो ये सारी चीजों से DGMS डायरेक्टली क्वेश्चन पूछती है, ठीक है। Typical risk management forms include, these are 3 different risk management forms which are given by DGMS: hazard identification and risk ranking, control or treatment of risk, and then action plan. ये 3 डिफरेंट फॉर्म्स है रिस्क मैनेजमेंट। मैंने आपको रिस्क मैनेजमेंट पूरा प्रोसेस बता दिया। ये 3 अलग अलग फॉर्म है, 3 अलग अलग चीजें हैं रिस्क मैनेजमेंट को इंश्योर करने के लिए। ओके, व्हाट आर सेवरल स्टेप्स इन्वॉल्वड इन रिस्क मैनेजमेंट? ये भी कुछ ज्यादा डिफिकल्ट चीज नहीं, आपको बस पढ़ना है। स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3। इनिशियल हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, रिस्क असेसमेंट एंड प्रायोरिटाइज, identify mechanism contributing principal hazards and ranking, then control measures and procedures for respective mechanism contributing hazards। ठीक है, तो कुछ नई चीजें नहीं है इन सारी चीजों के बारे में, बस आपको एक बार पढ़ लेना है, कुछ नया नहीं है आपको इस पूरे टॉपिक में। देखिए मेरा कॉन्सेप्ट हमेशा क्या होता है, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि बहुत ज्यादा कंटेंट पढ़ करके अपने दिमाग के अंदर डालने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि आपका सिलेबस इतना वास्ट है कि हर चीजों के बारे में अगर हर कंटेंट को आप याद करना चाहेंगे तो आप अपने आप को कंफ्यूज ज्यादा करेंगे और आपका क्लैरिटी कम होगा। इसलिए यू शुड फोकस ऑन द कीवर्ड्स एंड द की लाइंस। रिस्क मैनेजमेंट आपको मैंने बता दिया, और रिस्क, अगर आपको रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ना है, जस्ट इस इमेज को, इस डायग्राम को आप याद रखिए। रिस्क मैनेजमेंट, ये पूरा रिस्क मैनेजमेंट बता रहा है, दिस इज कंप्लीट रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। ओके, अब डिफरेंट फॉर्म्स या फिर जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट चीजें हैं 1-2 बार पढ़ने के लिए, लेकिन आप चाहो कि हर चीज दिमाग में एक एक वर्ड बाय वर्ड याद रहे। देखो ऑब्जेक्टिव एग्जाम दे रहे हो, सब्जेक्टिव एग्जाम नहीं दे रहे हो, यू आर नॉट राइटिंग सब्जेक्टिव एग्जाम where everything has to be written by yourself. No, everything is written there, you just have to read the options and answer it. So that is why this is a basic difference while preparing for written exam and while preparing for MCQ exam, means CBT exam. Okay, so these are the steps involved in the risk management process. What are the tools of risk management? These are the tools of risk management: minutes of safety committee meeting, okay, workman's inspector report, contraventions pointed out by regulators and action taken report, safety officers inspection report। कोई भी वैसी चीज जो रिस्क के बारे में, जो सेफ्टी के बारे में बात करता है, वो सारे रिस्क मैनेजमेंट के टूल्स है। क्योंकि किसी भी एक पार्टिकुलर चीज में कोई एक पॉइंट लिखा हुआ है, उन सारे पॉइंट को आपको देखना है, ऑब्जर्व करना है, एंड देन उसके बारे में आपको एनालाइज करके कंट्रोल एग्जिस्ट करना है, कंट्रोल सही नहीं है तो उसे और सही करना है। ओके, सो दीज आर द टूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट, यू जस्ट रीड इट, नथिंग स्पेसिफिक या कोई भी ऐसी डिफिकल्ट चीज में नहीं लिखी हुई है, दीज आर द टूल्स ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। ओके, and this is the question which have been asked by DGMS in the exam, so that is why I was showing all these things। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको नहीं भी पता है ना एग्जैक्टली, तब भी इस क्वेश्चन का आप जवाब दे दोगे। ये मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं कि हर चीज जानोगे तभी आप जवाब दे पाओगे, ऐसा नहीं है। आई वॉन्ट टू क्रिएट विजडम इन योर माइंड, नॉट want to teach each and every line. What are the tools in risk management? Minutes of meeting of safety committee, workman's inspector report, safety officer inspection report, ISO report, and all of the options। ये तो आपको पहले ही मैंने बता दिया है कि अगर all of the options हो तो
बहुत हाई चांसेस होता है आपका सही होने का. ओके, so answer is E and most of you people have answered E, so that is an excellent thing. Well done, बहुत अच्छी बात है. Okay, so these are the tools of risk management. ये डीजीएमएस ऑलरेडी क्वेश्चन पूछ चुकी है. Is risk management come from safety management plan? See, देखो मतलब इसलिए मैं बोल रहा हूँ. अच्छा, एक क्वेश्चन अभी किसी ने पूछा है कि रिस्क मैनेजमेंट कम्स फ्रॉम सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान. देखिए, आप ना इस चीज को पहले फिलहाल छोड़ दो. आप समझो रिस्क मैनेजमेंट और सेफ्टी मैनेजमेंट. ठीक है, सेफ्टी मैनेजमेंट मतलब कंप्लीट एस्पेक्ट ऑफ माइंस के बारे में बात करते हो, दैट इज सेफ्टी मैनेजमेंट. ओके, व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? डिफरेंट टाइप ऑफ रिस्क आर प्रेजेंट, यू हैव टू मैनेज ऑल द रिस्क. सो छोटे छोटे कंपोनेंट, छोटे छोटे रिस्क को जब आप मैनेज करेंगे, हर रिस्क के बारे में जब आप लिखेंगे, तो वो एक लार्जर पिक्चर होगा और वो पिक्चर कहलाएगा आपका सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान. ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट प्लान मतलब एक पार्टिकुलर रिस्क और उस तरह के सारे रिस्क को मैनेज करने के बारे में बात कर रहे हैं. सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान मतलब कंप्लीट सेफ्टी की बात कर रहे हैं. तो ये दोनों एक दोनों से अलग नहीं है. दीज टू आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर. कि पहले आप रिस्क मैनेजमेंट करेंगे तभी आप सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान बनाएंगे. मतलब रिस्क मैनेजमेंट विल बी अ पार्ट ऑफ सेफ्टी मैनेजमेंट प्लान. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हजार्ड मैनेजमेंट. हम रिस्क के बारे में पढ़ रहे थे, हमने रिस्क मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा, हमने हजार्ड के बारे में भी देखा था, तो हम हजार्ड मैनेजमेंट भी पढ़ेंगे. क्योंकि आपको मैंने बताया था बेसिक डिफरेंस हजार्ड और रिस्क का. हजार्ड जो इनहेरेंटली प्रेजेंट है, दैट इज कॉल्ड हजार्ड, बट इफ एक्सपोजर इज देयर, देन इट बिकम रिस्क. सो वी आर टॉकिंग अबाउट हजार्ड मैनेजमेंट. द मैनेजमेंट, ये नेशनल सेफ्टी कॉन्फ्रेंस ने बोला, द मैनेजमेंट ऑफ द माइन शुड कंडक्ट अ रिस्क असेसमेंट प्रोसेस टू आइडेंटिफाई एनी हजार्ड that could influence the safety and health of worker of the mine. Okay, मैनेजमेंट को ये काम करना पड़ेगा रिस्क असेसमेंट का, ताकि हजार्ड को आइडेंटिफाई किया जा सके. सो व्हाट इज हजार्ड मैनेजमेंट प्लान? इट इज अ रिटन safety and environmental plan for work unit, which provides a framework for ensuring compliance with regulations pertaining to protection of safety and personnel and the environment. ठीक है, कुछ भी चीजें, जो सारी चीजें पढ़ रहे हैं ना, देखो देखने में तो लग रहा है अलग अलग है, बट एक्चुअली सबका थीम सेम है, इक्वल है, कुछ भी अलग नहीं. ओके, सो दिस इज हजार्ड मैनेजमेंट. बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ हजार्ड मैनेजमेंट आर, फिर से अगर मैं बताऊं, बेसिक कंपोनेंट, आप इसको नहीं भी पढ़ोगे ना तब भी आप बात कर सकते हो. आइडेंटिफाई द हजार्ड, assess the risk, and then create control plan to control that hazard. Okay, so these are the three basic components of hazard management plan. You have to identify the hazard first, then assess the risk कि उस hazard से कितना risk arise हो रहा है, और अगर arise हो रहा है तो फिर उस hazard को हमें कैसे control करना है, किस तरह के operating procedures होने चाहिए, किस तरह के हमें safety precautions लेने चाहिए, ताकि वो hazard जो है वो कोई unwanted consequence present या unwanted consequence create ना करे. Okay, so these are the three basic components of hazard management plan. This is a question which have been asked by DGMS. What are the basic components of hazard management plan? So please read the question carefully and then answer it. अब हजार्ड मैनेजमेंट प्लान मतलब पूरे हजार्ड को मैनेज करना, कंप्लीट जो हजार्ड प्रेजेंट है उसका कंप्लीट मैनेजमेंट करना है. तो इसका मतलब हजार्ड मैनेजमेंट प्लान में सारी चीजें किसी भी हजार्ड को लेकर के शामिल होनी चाहिए, इंक्लूड होना चाहिए. ओके, मोस्ट ऑफ यू पीपल आर आंसरिंग ए, एंड ऑफ कोर्स ए इज द करेक्ट आंसर. सो अगेन वेल डन, बहुत बढ़िया, एक्सीलेंट. ठीक है, तो बताओ टिल नाउ आपको चीजें समझ में आ रही है जो हम बात कर रहे हैं? इसलिए मैंने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द क्लास पहले लिख दिया था कि हम क्लास में क्या क्या पढ़ने वाले हैं. आपको कंफ्यूजन ना हो, बहुत सारे टर्म्स देख करके आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. पूरा क्लास अगर आप बात करो ना, इट इज ऑल अबाउट सेफ्टी, इट इज ऑल अबाउट रिस्क एंड रिस्क मैनेजमेंट, हजार्ड एंड रिस्क मैनेजमेंट. ठीक है, कुछ भी नया नहीं है. उन्हीं सारे इसी थीम पे अलग अलग कुछ डीजीएमएस के वर्ड्स हैं, कुछ अलग अलग टॉपिक्स हैं, उन सारे टॉपिक्स को हम पढ़ रहे हैं. बट कंप्लीट थीम आप एक बार अपने दिमाग में रखो कि वी आर स्टडिंग रिस्क एंड इस मैनेजमेंट. तो रिस्क एंड इस मैनेजमेंट के लिए आपको पहले रिस्क समझना पड़ेगा कि रिस्क क्या होता है. आपको ये जानना पड़ेगा कि वो रिस्क कितना बड़ा या कितना छोटा है, मतलब आपको रिस्क को एसेस करना पड़ेगा.
आपने एक बार जब एसेस कर लिया तो आप ये देखोगे कि एग्जिस्टिंग जो आपके पास मैकेनिज्म है वो कैसा है, सफिशिएंट है कि सफिशिएंट नहीं है। अगर सफिशिएंट है तो ठीक है, फिर से अगला रिव्यू करोगे आप। अगर सफिशिएंट नहीं है तो फिर आप उसको अपना कंट्रोल, जो भी एग्जिस्टिंग कंट्रोल्स है उसको इंप्रूव करोगे इस तरीके से कि रिस्क और मिनिमाइज हो जाए। तो कंप्लीट पूरे क्लास का थीम बस यही है, अलग अलग टॉपिक्स है, उन सारे टॉपिक्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। ऑलराइट, सो अगेन वी आर टॉकिंग अबाउट हजार्ड। सो हजार्ड आइडेंटिफिकेशन। अब हजार्ड आइडेंटिफिकेशन, देखो रिस्क स्कोर क्या है आप समझो, अभी आगे पढ़ेंगे रिस्क स्कोर के बारे में। बट व्हाट इज रिस्क स्कोर? देखो कुछ अलग अलग चीजें, तीन डिफरेंट पॉइंट, दो डिफरेंट पॉइंट को मल्टीप्लाई करके एक नंबर निकाला गया कि इससे ये पता चले कि ये हजार्ड जो है वो कितना ज्यादा रिस्की है। अगर रिस्क स्कोर ज्यादा है तो ज्यादा रिस्की है, अगर रिस्क स्कोर कम है तो कम रिस्की है। So this is the content which have directly been fetched from DGMS circular. Hazard identification. Risk score is greater than 200. It is between 20 to 200 and it is less than 20. तीन अलग अलग डिवीजन दिया हुआ है रिस्क स्कोर के आधार पे। अगर ये 200 से ज्यादा है तो दैट इज हाई रिस्क। अगर 20 से लेके 200 तक है, हजार्ड आइडेंटिफाइड एज रिस्क, मतलब बेसिकली तो वो एक हजार्ड है बट रिस्क हो सकता है। और अगर 20 से कम है तो उसका रिस्क बहुत ही कम है। ओके, एंड इसके लिए आपका कॉरस्पॉन्डिंग एक्शन क्या होना चाहिए मैनेजमेंट का, वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ इट इज हाई रिस्क देन इट रिक्वायर्स इमीडिएट अटेंशन। एकदम सही बात है, बहुत ज्यादा रिस्क प्रेजेंट है और अगर आप इमीडिएट कुछ काम नहीं करते हो तो कभी भी वो आपका हजार्ड हो जाएगा, कभी भी कोई डिजास्टर हो सकता है या कभी भी कोई एक्सीडेंट हो सकता है। ओके, सो दैट इज व्हाई इफ इट इज हाई रिस्क, रिस्क स्कोर इज ग्रेटर देन 200 means it is high risk and it requires immediate attention. If risk score is between 20 to 200, then it is identified as risk and it requires management action. Although not immediate action is required, but yes, it requires management action. ठीक है, यहाँ पे वर्ड इमीडिएट लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्ड इमीडिएट नहीं लिखा हुआ है। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। 20 से कम है तो लो रिस्क है, लेकिन फिर भी चूंकि 20 आ रहा है वैल्यू, इसलिए आपको रिव्यू करना बनता है कि वो बड़ा ना हो जाए, वो ज्यादा रिस्की ना होता जाए। So these are the three basic categorization which have been provided by DGMS. Okay, so read this because question has directly been asked by DGMS. Okay, there is one more term. See, this is risk control plan. अब फिर से रिस्क कंट्रोल मतलब क्या हो गया? रिस्क, आप रिस्क को आइडेंटिफाई कर चुके, अब उस रिस्क का आप एग्जिस्टिंग कंट्रोल मैकेनिज्म भी आपने देख लिया। अगर एग्जिस्टिंग कंट्रोल मैकेनिज्म सही है तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, अगर सही नहीं है तो आपको फिर प्लान बनाना पड़ेगा कि उस रिस्क को कैसे कंट्रोल करना है। ओके, सो आप देखो कंप्लीट चीजें इसमें लिखी हुई है कि ये हजार्ड नंबर क्या है, कैटेगरी क्या है, क्या है मैकेनिज्म, क्या है कंट्रोल प्रोसीजर, क्या है, और एक यहाँ पे वर्ड है ERCI, एग्जिस्टिंग रिस्क कंट्रोल इंडेक्स। ओके, ERCI, एग्जिस्टिंग कंट्रोल, एग्जिस्टिंग रिस्क कंट्रोल इंडेक्स। ओके, ERCI इज इंपॉर्टेंट। ओके, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी फिक्स की गई है? असिस्टेंट मैनेजर, किसी की भी हो सकती है बट असिस्टेंट मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी फिलहाल इन सारे टास्क में किया हुआ है। ओके, दिस इज द क्वेश्चन विच हैव बीन आस्क्ड बाय DGMS। एग्जिस्टिंग रिस्क कंट्रोल इंडेक्स मतलब जो आपने एग्जिस्टिंग कंट्रोल किया हुआ है किसी रिस्क को मैनेज करने के लिए, उसकी वैल्यू हाई है या लो। ओके, सो दिस इज द क्वेश्चन। ऑल्दो ERCI के बारे में एग्जैक्टली मुझे कंटेंट नहीं मिल पाया DGMS की सर्कुलर में या कहीं पे भी, तो आई एम सर्चिंग फॉर दैट। So for this question, I am not correct. What is the correct answer? I am not sure what is the correct answer, but still I have given the answer. अगर कोई change होता है, then I shall inform you all. Okay, so read the question and then tell me what is the answer. Risk is 200. It requires management action. Risk is less than 20 with low existing risk control index. It requires immediate action. Risk is 20 to 200 and low ERCI requires immediate action. Risk is less than 20 and high ERCI requires immediate action. ओके, जो लोग ए आंसर कर रहे हैं पहले आप पढ़ लो, पहले आप जवाब दे दो, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन के बारे में आपको बताऊंगा। ओके, सम वेरिएबल आंसर्स इज means you are giving variable answer for this question. A, B, C, all the answers are present and I can understand that. I can clearly understand that.
ओके, तो सबसे पहले ऑप्शन ए के बारे में देखिए। ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 200 से कम है, लेस देन 200, तब मैनेजमेंट एक्शन रिक्वायर्ड है। ओके, तो इसलिए ऑप्शन ए तो मैं नहीं मानता कि होगा। कुछ क्वेश्चन है लोगों के, मैं जवाब देता हूँ क्वेश्चन का। इसका आंसर सी है। आई एम नॉट श्योर अबाउट द आंसर, बट स्टिल जब भी आगे मुझे कुछ मिलता है तो मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। ओके, फिलहाल आंसर सी है। आगे बढ़ते हैं, मैं क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर लूंगा आपकी। रिस्क असेसमेंट। अब मैंने रिस्क असेसमेंट आपको हिंदी में समझा ही दिया था। व्हाट इज रिस्क असेसमेंट? इट इज अ प्रोसेस दैट involves measurement of risk to determine priorities and to enable identification of appropriate level of risk treatment. A business impact analysis is the process for determining the potential impacts resulting from the interruption of time sensitive and critical business processes. ठीक है, ये थोड़ा सा अलग से मिसलेनियस लिखा हुआ है, आपको जानने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले बता दिया, आप रिस्क के बारे में जानते हो, तो रिस्क आपको एसेस करना पड़ेगा। यू हैव टू एसेस द रिस्क कि वो रिस्क कितना ज्यादा डेंजरस है या डेंजरस नहीं। Okay, so that is risk assessment. So these are the different components of risk assessment that you have to identify the hazard, then determine who might be at risk, then assess the likelihood and severity of risk, then actions, identify actions to eliminate or control the risk, then evaluate, conduct an evaluation कि वो जो आपका रिस्क अवेलेबल है या रिस्क जो हजार्ड्स अवेलेबल है, उन सारे हजार्ड्स को आपको कैसे कंप्लीट करना है। दीज आर वेरी सिंपल, वेरी इजी स्लाइड्स। आप दोबारा जब भी एक बार देखोगे आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा। कुछ भी स्पेसिफिक नहीं बता रहा मैं, जब स्पेसिफिक बताऊंगा तो आपको आराम से जरूर जरूर समझाऊंगा। ओके, दिस इज द क्वेश्चन व्हिच हैव बीन आस्क्ड बाय डीजीएमएस, सो प्लीज रीड द क्वेश्चन एंड देन आंसर। What will be the risk rating if risk is exactly 200? देखो, एक ना बहुत ही सिंपल सी चीज होती है। अच्छा, पहले आप जवाब दे दो, उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, पढ़ने का तरीका बताता हूँ। Okay, so most of you people are answering E. कुछ लोगों ने ए आंसर किया है। ऑफ कोर्स आंसर ई है, ऑल ऑफ द थ्री ऑप्शन। ओके, ऑल ऑफ द थ्री ऑप्शन इज द आंसर। ठीक है, चलो ठीक है। अभी जस्ट एक मिनट में आपसे लेता हूँ। एक होता है पढ़ना, एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो और आपका पर्पस है एग्जाम को क्वालिफाई करना। एक होता है बाल की खाल उतारना, कि आपके पास कुछ कंटेंट है, आपको ना हर चीज पढ़ करके घुस करके देखना है क्या है नहीं है। मैं आपको साफ साफ बता देता हूं कि दैट अप्रोच इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू टू क्वालिफाई द एग्जाम। आपका पर्पस क्या है? आपका पर्पस क्या माइंड सेट की एक एक लाइन को या सर्कुलर की या जनरल सेफ्टी की या मैनेजमेंट की, अगर पूरे कंटेंट का जुगाड़ करना है, अगर पूरे कंटेंट के बारे में पढ़ना है, तो आपके पास ना बहुत आराम से काफी टाइम है, आप पढ़ लो। आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इट इज माई सिंसियर सजेशन कि जितनी सारी चीजें आपको मिल रही है, आप उसको आराम से पढ़िए, उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। मैं सिर्फ वही चीजें पढ़ा रहा हूं आपको जिससे डायरेक्टली, मैं क्या बता रहा हूं बार बार आपको, वर्बटिम डायरेक्ट वर्ड टू वर्ड क्वेश्चन मैच होंगे एग्जैक्टली। लेकिन इसके अलावा अगर आपको बहुत सारी चीजें पढ़नी है, आपके पास बहुत सारा कंटेंट है, आप चाहो तो उसके बारे में पढ़ सकते हो। मेरी सिंसियर सजेशन है, बाल की खाल मत उतारो। आपको जो पढ़ना है एग्जाम की, प्लीज आप उस पर कॉन्सेंट्रेट करो, प्लीज, अदरवाइज दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू टू क्वालिफाई द एग्जाम। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 10। रीड द क्वेश्चन एंड देन आंसर। मैंने इसके बारे में आपको नहीं बताया, इस क्वेश्चन के बारे में आप पढ़ो। आई जस्ट वांट टू चेक द विजडम। आप जो विजडम मैं आपके अंदर जनरेट करना चाह रहा हूँ, क्या आप विजडम वो ला रहे हो? इसलिए आप आराम से पढ़ो। और सब मैं चाहता हूँ कि सब लोग आप लोग जवाब दीजिए। कोई ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जवाब नहीं दीजिए। आप लोग सब लोग इस क्वेश्चन को पढ़ करके जवाब दीजिए। Three common mistakes while conducting risk assessment are: objectives of risk assessment not clearly spelled, no follow-up of risk assessment, manager is not included in the team, no provision for monitoring and review, safety officer is not involved in all risk assessment. आप एकदम ध्यान से क्वेश्चन को पढ़िए एंड आई बिलीव कि आप डेफिनेटली इस क्वेश्चन को करेक्ट करेंगे, क्योंकि आप रिस्क असेसमेंट के बारे में जान चुके हैं, सारी चीजें आप जान चुके हैं। आप इसको पढ़िए और आराम से एक एक करके, मैंने आपको तरीका बताया था ना, इलिमिनेट करना है। जो ऑप्शन
नहीं हो सकता, उसके बाद 2-3 एलिमिनेट हो जाएगा, 50-50 पे आप आ जाएंगे, उसके बाद सही करेंगे। So what are the 3 common mistakes while conducting risk assessment are? कौन कौन से 3 ऐसे, सिर्फ 3 ऐसे मिस्टेक्स बताने हैं आपको, कॉमन मिस्टेक्स जो रिस्क असेसमेंट कंडक्ट करने के दौरान आपको हो सकता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिस्क असेसमेंट इज नॉट क्लियरली स्पेल्ड, ये तो डेफिनेटली एक मिस्टेक होना चाहिए, होता होगा कि रिस्क असेसमेंट की ऑब्जेक्टिव ही क्लियरली डिफाइंड नहीं है। तो एक तो डेफिनेटली ऑप्शन होना चाहिए, आप अग्री करेंगे कि एक तो ऑप्शन में होना ही चाहिए। इसका मतलब सी और ई तो हो नहीं सकता, सी और ई को आप हटा दो, किसी काम का नहीं है सी और ई। आपके पास ए बी और डी, आगे पढ़ो। नो फॉलो अप ऑफ रिस्क असेसमेंट, मैनेजर इज नॉट इंक्लूडेड इन द टीम। अब जरूरी है क्या कि मैनेजर को इंक्लूड करना है? ऐसा तो मैंने कहीं नहीं बताया। मैनेजर, अगर मैनेजर माइंस लेवल पे है, आप मान लीजिए कि मैनेजर के जगह पे आपने एजेंट को, जनरल मैनेजर सेफ्टी को इंक्लूड कर लिया, तो जरूरी नहीं है कि अगर मैनेजर को इंक्लूड नहीं कर रहे हैं तो बहुत बड़ा मिस्टेक हो रहा है। ठीक है, तो 3 को भी आपको नहीं होना है। अगर आप इसका आंसर देखो, आंसर इज डी। अब आप वापस मैच करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि 3 कॉमन मिस्टेक अगर आपसे रिस्क असेसमेंट के बारे में पूछ रहा है। आंसर इज 1, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिस्क असेसमेंट इज नॉट क्लियरली स्पेल्ड। नंबर 2, नो फॉलो अप ऑफ रिस्क असेसमेंट। एंड नंबर 4, नो प्रोविजन फॉर मॉनिटरिंग एंड रिव्यू। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बताया रिस्क असेसमेंट की बात कीजिए, रिस्क मैनेजमेंट की बात कीजिए, हजार्ड मैनेजमेंट की बात कीजिए, ये सारे प्रोसेस कंटिन्यूअस प्रोसेस होने चाहिए। अगर आप कुछ देखोगे, कुछ गलती मिलेगी तो आपको सही करना है। अगर आप सही नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब किसी काम का ही नहीं है, देन योर एक्सरसाइज इज फ्यूटाइल, जस्ट फ्यूटाइल, because you are not taking the corrective action. So that is why for any of the process, either risk assessment or risk management or hazard assessment or hazard management, these all process are continuous process जो day to day basis पे regular interval पे होते रहने चाहिए। So 3 basic objectives, 3 basic mistakes which are done while conducting this assessment are 1, 2 and 4. This is the official answer of DGS. Okay, so now we talk about 3 different types of risk assessment. There are 3 different basic types of risk assessment. Okay, number 1 is baseline risk assessment. पहले आप ध्यान से इस बार एक स्लाइड को पढ़िए, फिर मैं आपको कीवर्ड बता दूंगा, बस उतने से याद हो जाएगा आपको। ध्यान से आप पढ़िए इस स्लाइड को। All of you read the slide carefully for 30-45 minutes. 45 seconds. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कीवर्ड पता है क्या है? फर्स्ट टाइम, पहली बार। The baseline risk assessment is done. The baseline risk assessment is done to determine the risk for the first time. जो पहला baseline risk assessment, आपने मान लो माइंस पे एक डंपर लाया, या मान लो एक बड़ा मशीन ड्रैग लाइन लेके आप आए अपने माइंस पे, ठीक है? तो फर्स्ट टाइम जब उस ड्रैग लाइन से रिलेटेड रिस्क को असेस करोगे, then that will be called baseline risk assessment. So this is the very important keyword कि if you assess the risk for the first time, then it is called baseline risk assessment. That is to establish a broad based risk profile. Depending on the results of baseline risk assessment, specific aspects or issues will be highlighted. Specific aspects or issues will be highlighted. First keyword is first time, then specific aspects or issues are highlighted, then baseline risk assessment must be reviewed. मैंने आपको पहले ही बता दिया, risk assessment कर रहे हो, risk management कर रहे हो, continuous process है, must be reviewed on regular interval to re-establish the baseline profile so as to minimize the risk in the organization. हिंदी में समझाता हूँ आपको। आपने अपनी माइंड पे एक ड्रैग लाइन लेके आए, आप ड्रैग लाइन लेके आए, ड्रैग लाइन का आपने रिस्क असेसमेंट कर लिया कि यस दिस काइंड ऑफ हजार्ड्स आर प्रेजेंट, तो इसलिए इस पार्टिकुलर ड्रैग लाइन है तो उसके यहाँ पे ब्लास्टिंग नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे कोई आदमी को काम नहीं करना चाहिए, यहाँ पे कोई मशीनरी नहीं आनी चाहिए। तो आपने ये क्या किया, आपने बेसलाइन रिस्क असेसमेंट कर लिया। लेकिन अब मान लो कि आपका ड्रैग लाइन तो ऑलरेडी काम कर रहा है, वो धीरे धीरे मूव कर रहा है, अलग माइंस के एक पार्ट से दूसरे पार्ट की तरफ अब माइनिंग एक्टिविटी शिफ्ट हो गई। तो क्या आपने जो फर्स्ट टाइम किया था रिस्क असेसमेंट वो कंप्लीट हो गया? नहीं। अब जैसे जैसे ड्रैग लाइन हर दिन काम कर रहा है, वैसे वैसे उसके साथ एसोसिएटेड रिस्क चेंज हो रहे हैं। सो दैट इज व्हाई यू नीड टू डू baseline risk assessment on a regular interval. That is why it is written. So what is baseline risk assessment?
पहली बार जब आप ड्रैग लाइन लेके आओगे तो उसको आप जब रिस्क एसेस करोगे तो वो बेस लाइन रिस्क असेसमेंट कहलाएगा. सो दैट इज बाय फर्स्ट टाइम. आप स्पेसिफिक इशू को ढूंढ रहे हो, ड्रैग लाइन से रिलेटेड रिस्क आप देख रहे हो. ऐसा नहीं कि पूरे माइंस में टोटल कितने रिस्क है, आप इसके बारे में नहीं बात कर रहे हो. यू आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्पेसिफिक इशू ड्यू टू deployment of that new drag line. And then the third most important word is that it has to be conducted on a regular interval. क्योंकि आपका माइंस लगातार बढ़ रहा है, आपका ड्रैग लाइन कंटिन्यूअसली काम कर रहा है. So that is why baseline risk assessment के अंदर only 3 important keywords are there. Number 1 is first time, number 2 is specific issues are highlighted, and number 3 it shall be conducted on regular interval. And this is complete description of baseline risk assessment. समझ में आ गया? आसानी से समझा दिया आपको. अलग कि एक नया टॉपिक जब आया, बेसलाइन रिस्क असेसमेंट की बात करोगे, पहला बार जब करोगे, स्पेसिफिक इशू के बारे में देखोगे और कंटिन्यूअसली करते रहोगे तो वो कहलाता है बेसलाइन रिस्क असेसमेंट. ओके.